Hello everyone, how are you all beta? Myself Saurav Singh is standing in front of you to teach physics, and we are going through with the chapter motion in a plane, and we are going through with the NCERT exercise. Till now we have completed question number 10, and today we are starting with the further more questions. So one by one we are solving these questions. If you have any doubt, please go through the comment section and ask your doubts. So we are starting now. Here is our first question. The question is in this way: a passenger arriving in a new town wishes to go from a station to a hotel. ठीक है, तो he is wishing to go from a station to what? Hotel located 10 kilometer away on a straight road from the station. A dishonest मतलब जानते हो कि मतलब एक अलग टाइप का इंसान जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है. dishonest cabman takes him a courteous path, मतलब किसी दूसरे रास्ते से ले जाता है, which is 23 kilometer and reaches the hotel in time, that is 28 minutes. So they are asking two things: what is first average speed of the taxi, and second the magnitude of average velocity. Are they two equal or not? तो चलिए हम इसका solution करते हैं. तो here is our solution. The solution is, suppose this is station and this is hotel, and it is given that if this is a straight path, then this distance is how much? 10 kilometers. But the cabman take him to another path. Let us suppose this is the another path, and it starts from station to hotel. The distance now is how much? 23 kilometer. The timing of starting point is given to us is t is equal to 0 to t is equal to 28 minutes. So first of all, we should convert this time 28 minutes in hours, because the distance is in what? Kilometers. So we have to convert all the things in what? In MKS unit. So that is 28 will be minute to convert into what? Seconds. Hours. That is 28 divided by what? 60. And when you solve, it comes to be how much? 7/15 hours. So this is first thing we have got. Now we have to find out the thing what? Average speed of the taxi. तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम. तो हमको average speed निकालनी है. तो we have to find out average speed. So average speed is equal to what? Total distance upon total time. Now what is total distance? He has taken him to a long path, and that long path is how much? 28 kilometer. And what is our timings? तो timings आप देखिए बेटा कितना टाइम उसको लगा था. तो आंसर आया, उसको जो टाइम लगा था वो लगा था 7/15. तो that is 7/15. So when you will solve this, it comes to be how much? 28 into 15 divided by what? 7. ठीक है, 28 किलोमीटर को हमने जब उसको सॉल्व करा, तो दैट इज मे बी 28 और 23. लेट मी चेक वंस अगेन. सो बेटा दैट इज 23 किलोमीटर. सो दैट इज आई एम चेंजिंग. तो इट इज 23 किलोमीटर्स. सो दिस इज हाउ मच? दिस पोर्शन इज 23. जस्ट अ मिनट. सो दिस इज हाउ मच? 23. हियर इज ऑल्सो व्हाट? 23. इन द बुक इट इज गिवन. So this is 23. So when you will solve, it comes to be how much? This value when you will solve, it comes to be around 49.3. That is 49.3 kilometer per hour. So this is first thing we have find it out. What average speed is this? Now what we have to find out? Once again we are moving backward. Second thing we have to find out what? Average velocity. तो average velocity क्या होती है? तो velocity क्या होती है? Velocity होती है displacement upon time. तो हमको क्या निकालना है अब? Average. This is first we are finding out. Here is what? Second. तो average velocity क्या होगा? Displacement upon total time. What is the displacement? तो बेटा displacement कितना होगा? Shortest path, shortest distance, shortest path length. It is what? Station 2 is how much? It is 10 kilometer. So we will take it how much?
10 किलोमीटर, तो दैट इज हाउ मच, दैट इज 10 अपॉन टाइम इज व्हाट 7 अपॉन व्हाट 15. गेट इट सॉल्व. इसको जब आपने सॉल्व करा तो ये हमारा अराउंड निकल के आ जाएगा 24.43 किलोमीटर पर आवर. The last thing they are asking what? Are they two equal? Answer is what? They are not equal, because its value is how much? If we will see this, its value is around what 49 and its value is what this. So they are not equal. So they are what? Different values. So this is what our first question. अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. देखिए सेकेंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. क्वेश्चन क्या है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. बेटा इसको पीछे मोशन इन प्लेन में मैं करवा चुका हूं, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, वहां पर आप जाके लेक्चर को देखिएगा, फिर इस क्वेश्चन को करिएगा प्लीज. तो क्या है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ व्हाट 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो रेन की स्पीड हमको दे रखी है, हमको वुमेन की स्पीड दे रखी है जो साइकिल से चल रही है वो दे रखी है, और उसका डायरेक्शन दिया हुआ है. डायरेक्शन क्या दिया है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, और रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट भी कह सकते हो आप, वुमेन दो कुछ भी कह सकते हैं कि क्या स्पीड होगी. दूसरा क्या पूछा है? व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन. तो देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं. I have taken two axes. This is x axis somewhere here. It is what? This is x, and it is what? It is y. Now what I can see, if this is north direction I have taken and this is south direction I have taken, and it is the cyclist. ये कोई एक cyclist है, मैं सिंगल बना रहा हूँ, तो ये cyclist मान लीजिए सिंगल व्हील पे चल रहा है, and the velocity of the cyclist is given to how much? 10 meter per second. It is moving from south, north to south. It is moving from where? From north to south. So this is the direction of him. He is moving in this direction. So, and its velocity is how much? Velocity of cyclist is given to us is how much? That is 10. ठीक है. तो हमको क्या गिवन है इसमें? सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तो हमको इसको सोल्यूशन में VC दिया हुआ है. कितना दे रखा है हमको? 10 मीटर पर सेकेंड. इट इज गिवन. नाउ द रेन इज फॉलिंग. ठीक है भाई, तो रेन फॉल हो रही है, तो मैंने ये ले लिया कलर, और इस तरीके से रेन नीचे की तरफ गिर रही है. ठीक है. and the velocity with which rain is falling, that is vertically downward, and that is v of what? Rain, and it is given to us is how much? It is given 30. So this is the actual phenomena of the diagram. So this is the rainfall in this direction, and it is what? It is the cyclist moving. We have to solve the first thing. So v of what? Rain is given, and it is given to be how much? It is given 30. So they are asking first thing, what is the velocity of rain with respect to woman or cyclist. मैंने c ले लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v of r minus v of what? c. You know what is the value of v of r and v of c. Substitute them and get the solution. तो सिंपल सी वैल्यूज हम लगाएंगे इसमें और हमारे पास आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 30 minus 10 and it is how much? 20 meter per second. First thing we have find out. Now the second thing they are asking, what is the direction? So to see the direction, हम इसको जाके स्लाइड पे देखते हैं. तो यहाँ देखिए इस तरीके से रेनफॉल हो रही है नीचे की तरफ में. ये क्या है? v of r है. एंड द साइक्लिस्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट रिलेटिव वेलोसिटी में हम नेगेटिव लेते थे, याद करिएगा. तो ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये VC हो जाएगा. ठीक है. तो व्हाट इज द डायरेक्शन? अगर मैं बात करूं तो यही तो होल्ड करने का डायरेक्शन होगा अम्ब्रेला का. तो ये एंगल अपने को थीटा निकालना है इसमें. ठीक है. तो अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे tan टेंजेंट. ठीक है. आप क्या निकालेंगे इसमें? आप निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? VC अपॉन VR. ठीक है बेटा. और थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट?
of VC upon what? VR. What is the value of VC? We can see the value of VC is how much? 10. And what is the value of VR? It is what? 30. Substituting these values, so it is how much? VC is what? 10 and it is what? 30. So when you are solving this, here you are getting the solution in this way, that is 10 inverse how much? That is VC is how much? It is given to be 10 and it is how much? 30. When you are calculating, it comes to be how much? Theta is equal to how much beta? 10 inverse of 1/3. So this is the direction in which she should hold the umbrella. तो हम उसको umbrella का direction भी बना लेते हैं. So this is the direction of what? Umbrella she should hold. In this way she is holding, and this is the theta angle. ठीक है. So do you able to understand how we are solving this question? So this is the solution of what? Second question. Now moving on to the third problem. Third problem हमारी क्या है? देखिए, next question क्या है? The ceiling of a long hall. So this is a long hall. This is 2D I have made. If you are sitting in a room, that is 3D, you can see. The ceiling of the long hall is how much? 25 meter. What is the maximum horizontal distance that a ball throw with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? तो दिस इज द प्रॉब्लम. समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्या हमको दिया हुआ है इसमें. तो देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये हमारे पास में एक हॉल है जिसकी मैक्सिमम H मैक्सिमम हमको दिया हुआ है, और ये H मैक्सिमम हमको कितना दे रखा है? 25 मीटर. ठीक है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो हाउ मच? 25 मीटर. ठीक है. In the given problem we have got this. Now what occurs if we are throwing a ball? Let us suppose I am throwing a ball with a velocity, suppose u, in this way, initial velocity u, and it is making an angle theta. It is making an angle what? Theta with the horizontal, and it is going in this direction. The problem is saying that this ball should not touch, does not touch the ceiling, but how much is the maximum range it should cover? This we have to find out. That is, we have to find out what? R maximum, this distance from here to here. तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आ गया होगा कि मैक्सिमम के लिए हम थीटा 45 लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम थीटा 45 नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हम बाउंड हैं कि दैट द हाइट ऑफ द सीलिंग इज हाउ मच? 25 मीटर. तो बेटा इसमें हमको पहले थीटा निकालना होगा. तो सोचिए एक मिनट के लिए अपने दिमाग में कि मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूं जिससे मेरे पास हो जाए. गिवन मैं चीजें आपके लिए लिख रहा हूं. व्हाट इज गिवन? दैट इज H मैक्सिमम दे हैव गिवन अस, एंड इट इज हाउ मच? इट इज 25 मीटर. फर्स्ट थिंग, एंड दिस इज 25 meter they have given us. Second thing what they have given to us is what? That is velocity, that is initial velocity, and it is how much? It is 40 meter per second. These two things they have given us. Now what we can do in this problem? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला होता था, क्या क्या चीज़ें हम लगाते थे, वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अपने आप ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? प्रोसीड हो जाएगा. और हाइट का क्या फॉर्मूला लगाते थे? तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो हाइट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? सोचिए, एक बार रिकॉल करिए. नहीं समझ में आए तो वीडियोस में जाइए. तो इसका फॉर्मूला हुआ करता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. चेक कर लीजिए, यही फॉर्मूला होता था क्या? तो H का फॉर्मूला हमारे पास में हुआ करता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट? 2g. अच्छा, यहाँ पर H हमको लिमिटेड है तो हम इसको H मैक्सिमम मान लेते हैं. अगर मैं इसकी वैल्यूज लगाऊं तो देखिए H कितना है मेरे पास में? 25 है. u कितना है मेरे पास में? 40 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी. जी इज हाउ मच? 9.8. तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो आपके पास में यहाँ से सॉल्व करने पे क्या होगा? जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास में 25 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 1600. 40 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 1600. और इस पूरे का हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, और फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा. फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करिएगा, तो थीटा हमारे पास में जो निकल के आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्री निकल के आएगा.
जब इसको सॉल्व करेंगे तो योर थीटा विल कम्स आउट टू बी व्हाट, अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहां से थीटा फाइंड आउट कर लिया और हमने क्या देखा कि एज पर द गिवन हाइट दिस थीटा इज नॉट इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज जब मैक्सिमम होती है उस समय क्या हम पढ़ते थे कि थीटा कितना होता है 45। तो इस क्वेश्चन में 45 नहीं है, कितना है 34 है। अब हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो देखिए आर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो अब चेक करिए आर का फॉर्मूला क्या होता है। आपने अभी थीटा पाया, कितना पाया थीटा, इसमें 34 डिग्री पा लिया, ठीक है बेटा। साथ में आपको u कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, तो देखिए ध्यान से फिर से आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 40 दी हुई है, तो दैट इज हाउ मच 40 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या फाइंड आउट करना है, आर, किस एंगल के लिए, इसी थीटा एंगल के लिए। तो आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था, तो देखिए हम आर का फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन व्हाट जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज विच वी हैव फाइंड आउट जस्ट नाउ, तो u हम इसमें देखें तो u हम कितना लगाएंगे, इसमें u लगाएंगे हम 40 का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ हाउ मच 34 एंड अपॉन जी इज व्हाट 9.8। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास में 1600 इनटू साइन हाउ मच 68 अपॉन 9.8। इन सभी वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 150.5 मीटर, ठीक है। ऑल्दो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो बोर्ड में या आपके सोल्यूशन में साइन 70 की 68 की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is our next question. The next question is in this way, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance. What is maximum horizontal distance? It means range. They are saying what? They are discussing about what? Range of 100 meter. It means they are giving what? If this is point O and this is any point A, so they are giving a distance OA. Solution में अपने को क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें हमको OA दिया हुआ है and that is what? That is range and its value is how much 100 मीटर, ठीक है, ये हमको गिवन है, फुल स्टॉप। देन आफ्टर दैट, हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अब इसमें पीछे में बार बार कह रहा था, जब आप मैक्सिमम किसी को थ्रो करते हैं और हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास में मैक्सिमम आता है तो उस केस में आप क्या पाते थे, उस केस में थीटा कितना होता था 45 डिग्री। यू कैन सी इट और आई हैव ड्राइव इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें लगाई। तो क्या फॉर्मूला हुआ आर का, आर मैक्सिमम का, बताइए अगर मैं आर मैक्सिमम की बात करूं तो फॉर्मूला वैसे क्या होता है, अभी आपने देखा पीछे क्वेश्चन में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन व्हाट जी। अब मैक्सिमम, अब देखिए ये आर, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं, ये आर किस फैक्टर के ऊपर बेटा डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये u कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से फेंक दिया आपने, ठीक है। ये भी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ थीटा एंगल। तो हमको साइन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और यहां पर क्या है, थीटा के साथ में 2 का कंपोनेंट है, तो साइन मैक्सिमम कहां पाया जाता है 90 डिग्री पे, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसीलिए यहां पर थीटा कितना लिया गया है 45 लिया गया है। तो यहां से जब मैंने आर मैक्सिमम निकाला तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास में, u स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 इंटू हाउ मच 45 अपॉन व्हाट जी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, 2 into 45 is what? 90, its value is what? 1. So we are getting R maximum from here and it is how much? It is U square upon what? G. What is the value of R maximum? We have got this. This is R maximum. It is given in the problem and its value is how much? 100. कैन बी सब्स्टिट्यूट इट हेयर। तो जैसे हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास में एक वैल्यू निकल के आ गई बेटा। वो वैल्यू क्या निकल के आ गई? दैट इज u स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू हाउ मच 100। ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन बना के रख लिया। अब क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन थ्रो द बॉल। अब देखिए, अगर आप कभी क्रिकेट खेलें, कुछ भी खेलें, किसी चीज को ऊपर फेंकना है तो कितने डिग्री के एंगल से थ्रो करना होगा? आंसर आया बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली अप करना होगा। तो उसमें थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री।
तो उस केस से, वरना आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के कर लीजिए। तो अगर मैं अब देखूं तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमको हाइट निकालनी है h, तो h मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए h मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, तो h मैक्सिमम का फॉर्मूला आप बताइए, अभी आपने देखा था। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट 2g। अब मुझे बॉल को थ्रो करना है। देखिए सपोज करिए ये मेरे पास में बॉल है और इसको मुझे, मैं हूँ सपोज कर लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ग्राउंड पे, and here is myself standing and I have to throw, and there is the ball in my hand. Suppose this is the ball and I have to throw for vertical, इसको बिल्कुल ऐसे फेंकना है। तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना ले लेंगे हम 90 डिग्री ले लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट h मैक्स। ठीक है, तो वैल्यूज लगाइए। तो यहाँ से जब हम h मैक्स लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 90 अपॉन हाउ मच 2g। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 1, तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो गया 1 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में u स्क्वायर अपॉन 2g। पीछे वाली स्लाइड में देखिए हमने कुछ निकाला था, क्या निकाला था हमने, u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू है कितनी 100। तो क्या मैं इसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो u स्क्वायर अपॉन g इज व्हाट 100, तो इट इज व्हाट 100 अपॉन 2, यहां से हम लिख देंगे सिंस u स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू व्हाट 100, और ये कितना था r मैक्स था, मैक्सिमम था। तो व्हाट इज द वैल्यू, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज व्हाट 50 मीटर्स। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम थी। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ये जनरली हम आईटी के क्वेश्चंस में करते हैं, और वरना आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए इसको, उसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह पर h मैक्सिमम लगा के भी आप इसको बेटा सॉल्व कर सकते थे। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन दिस वे, अ स्टोन इज टायर्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज वेट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल with a constant speed. If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, so how many revolution it is making, 14 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of a stone thrown, and the length is what 80 centimeter. तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आपके लिए एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, सर्कुलर मोशन, ये बेटा वहाँ से बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए, अगर मैं एक सर्किल बनाऊँ तो मतलब मेरे पास में ये सेंटर हो गया किसी सर्किल का, और इस पे ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है मुझे दे रखी है 80 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो दिस इज द गिवन टू अस, but it is moving with a constant velocity. Let us suppose it is moving with constant velocity, and what is angular velocity, omega, we know it. ठीक है, बट तो ये अपने को जो r दिया हुआ है एक्चुअल में ये वो है क्या, तो बेटा यहाँ पर जो r है इस सर्किल का, वो रेडियस दिया हुआ, लेंथ जो है वो क्या दे रखी है अपने को r 80 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरी चीज इन्होंने दे रखा है, इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, इट मीन्स हमको कहीं से ये फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया हुआ है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो ये 14 रेवोल्यूशन 25 सेकेंड्स में हो रहे हैं, तो एक रेवोल्यूशन कितने सेकेंड्स में होगा, तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी आपके पास में 14 डिवाइडेड बाई 25, 14 डिवाइडेड बाई व्हाट 25, और ये आ जाएगा रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास में, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू व्हाट न्यू, न्यू इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हेयर, तो इट इज हाउ मच 2 into 22 upon 7 into 14 upon what beta 25. So when we will solve this omega will comes out to be how much approximately, और solve करिए तो ये आ जाएगा 88
अपॉन 88 अपॉन 25, ठीक है। तो ये रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना निकल के आ गया 88, देख लीजिए कट रहा है यहाँ पर 2 हो गया और इस तरीके से हो गया। तो हमने ओमेगा निकाल लिया, बट हमको एंगुलर वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करनी, हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर एक्सेलरेशन। सो टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन हम आगे स्लाइड में चलते हैं। तो हमारे पास में ओमेगा निकल के आया है 88 अपॉन 25 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है यहां से, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, ए एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन होगा कितना, तो एक्सेलरेशन यहां पर निकल के आ जाएगा हमारे पास में आर ओमेगा स्क्वायर। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर इज गिवन टू बी हाउ मच, आर इज गिवन टू बी 80 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू 88 upon 25. Get it solved? This is your solution for this question. When you will solve it is approximately value you will get. और अगर आप इसको 100 से नहीं भी काटते तो आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। Now moving on to the next problem. देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वेक्टर्स की है। इसको देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। It means the particle is in space because there is I, there is J and there is what K. There are three things I, J, K. तो तीनों चीज़ें हैं इसमें हमारे पास में, और इस तरीके से हमको दिया हुआ है। आपको NCERT में मे बी 9 ना मिले, 9 नहीं है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो सिर्फ इतना ही NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है 4K, ठीक है। Where T क्या है, T is in seconds and the coefficients have proper units for R vector टू बी इन मीटर्स, मतलब इनकी वैल्यूज किसमें है, मीटर में दी हुई है। आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी, सेकंड पार्ट पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर मेरे पास में x है, यहाँ पर कहीं पर y है और यहाँ पर कहीं पर z है और ये ओरिजिन है। समवेयर हेयर इज द पार्टिकल एंड द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर इज व्हाट, r इट इज गिवन एंड इट्स वैल्यू इज इन दिस वे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमको रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, इफ दे हैव गिवन अस व्हाट, फर्स्ट थिंग दे हैव गिवन अस r एंड द वेक्टर r इज गिवन टू बी हाउ मच, 3t यूनिट वेक्टर i माइनस 2t स्क्वायर यूनिट वेक्टर j प्लस 4 यूनिट वेक्टर k। ऑल द थिंग्स इन व्हाट, मीटर। मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को वेलोसिटी चाहिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू हाउ मच, dr अपॉन व्हाट, dt। विल डिफरेंशिएट इट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये d ओवर dt ऑफ व्हाट, ऑफ 3t यूनिट वेक्टर i माइनस 2t स्क्वायर यूनिट वेक्टर j प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, v। यहां देखिए ध्यान से, i इज अ कांस्टेंट, इट विल कम आउटसाइड, 3t dt अपॉन dt कितना होता है 1, तो कितना आ गया ये 3i आ गया। फिर माइनस का साइन लगाया, 2 है। अच्छा, t स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाउ मच, 2t इंटू हाउ मच, j, and next one is what, plus 4 is a constant, so the differentiation of any constant is what, 0. So when you solve this, the value of v is comes to be how much, the value of v is comes to be, vector v is coming to be how much, it is coming to be 3i minus 4tj। ये मेरे पास में वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ गया। अब मुझे अगले स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज व्हाट, dv ओवर व्हाट, dt। देयर इज वेक्टर, देयर इज आल्सो वेक्टर, सो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर एंड वी विल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो देखिए अब क्या निकल के आएगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमने इसको यहाँ सॉल्व करा तो हमारे पास में एक्सेलरेशन निकालना है, तो a क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया dv ओवर व्हाट, dt, and what is the value of v, we can see, तो d over dt
ऑफ व्हाट, देखिए वैल्यू कितनी वैल्यूज थी हमारे पास में, हमारे पास वैल्यू थी 3i माइनस 4t, तो दिस इज हाउ मच 3i माइनस 4t वेक्टर j। सॉल्व करिए, ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट, तो द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज व्हाट, 0, तो ये क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, सो इट्स वैल्यू इज व्हाट 0, तो यहां से a कितना निकल के आ गया, और 4 माइनस का कितना आ गया 4, और t का कितना हो गया 1, तो 4j, तो ये मेरे पास में एक्सेलरेशन निकल के आ गया। तो हमने वेलोसिटी निकाल ली, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, तो सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है, तो फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम 2 सेकेंड्स, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका डायरेक्शन कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बहुत सिंपल सी बात है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो देखिए आपके पास में v कितना है, हम सेकंड कर रहे हैं, v हमारे पास में है 3i माइनस 4t इंटू वॉट j, और जब टाइम हमको दे रखा है 2 सेकेंड्स, उस समय देखिए, तो उस समय v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i माइनस 4 इंटू 2 इंटू j, इट विल बी हाउ मच 3 ऑफ i माइनस 8j। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, मॉड इन वेक्टर, तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। गेट इट सॉल्व, व्हेन यू विल सॉल्व इट इज हाउ मच, इट इज हाउ मच, इट इज 9 प्लस 64 and this is your solution. So these are few problems based on this NCERT of your book beta, and we are going through with this chapter. We will continue in the next lecture. Thank you.